إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو بہت جگہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ یہاں پر آیا نہ ان کو کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو بہت سی جگہ خوشخبری بھی دی گئی ہے، بہت سی جگہ انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے، باخبر کیا گیا ہے کہ باز آ جاؤ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر سے وہی بات فرما دی گئی. قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک طرف کسی گنہگار کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف نیکوکار کا بھی ہوتا ہے. جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور جہاں ایک طرف برے کا ذکر ہے وہاں دوسری طرف اچھے کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ تاکہ انسان ان میں سے کسی کو اختیار کر لے اور اس طرح پھر وہ اپنی پسند سے اپنے انجام کو پہنچے. یعنی کہ انجام تک انسان اپنی پسند سے پہنچتا ہے. اس کو ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں. اگر کہیں گنہگار بتایا گیا ہے تو کہیں پر ثواب کا باعث بھی بتایا گیا ہے. کہیں جہنمیوں کا ذکر ہے تو کہیں جنت والوں کا، اچھے لوگوں کا ذکر ہے تو کہیں برے لوگوں کا. تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ ان میں سے کون سا رخ اختیار کرتا ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کرو مہربانی تو محل زمیں پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. نیکسٹ آیت. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. تو یہاں سود کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں تب تک وہ غلط کاموں سے بچ نہیں سکتا. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ یہ ذریعہ ایسا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے وہ حرام کام سے بچ جائے اور گناہ میں ڈوبنے سے بچ جائے. لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں اس کے لیے کوئی نصیحت کام نہیں آئے گی. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ کی بات ماننی ہوگی. تو جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی بات ماننی ہوگی. جیسے یہاں بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے. یعنی کہ ان سب کاموں سے بچنے کے لیے جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کا ڈر. جب تک انسان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، تب تک وہ غلط کاموں سے نہیں بچ سکتا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی لائف بن جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو جو باقی ہے، جو کچھ رہ گیا اس کو چھوڑ دو سود میں سے اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم سچ میں ایمان والے ہو تو جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اور مجھ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
लड़ाई के लिए खबरदार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो असल रकम के तुम हकदार हो। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अगर तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे तो तुम पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लड़ाई के लिए खबरदार हो जाओ, यानी कि तैयार हो जाओ। और अगर तुम तौबा कर लो तो असल रकम के लिए तुम हकदार हो जाओगे। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। यानी कि जो असल माल है जो तुमने कर्ज के तौर पर दिया, यानी कि जो तुमने किसी को माल दिया है कर्ज के तौर पर, सिर्फ वही वापस लो, उसमें बढ़ाकर वापस मत लो, वो सूद होता है। ना तुम जुल्म करो और ना तुम जुल्म किए जाओगे। ना तुम्हें किसी पर जुल्म करने की इजाजत है और ना तुम पे जुल्म किया जाएगा। रिबा सब पर जुल्म है, कर्ज देने वाले पर भी और कर्ज लेने वाले पर भी। तो कर्ज को अगर सूद के साथ लिया दिया जाए तो वो हराम होता है। अदरवाइज कर्ज दिया जा सकता है, लेकिन उसमें सूद ना हो, उसे बढ़ाकर ना लिया जाए और ना ही बढ़ाकर उसको दिया जाए। लेने वाला और देने वाला दोनों पर ही सब पे लानत फरमाई है ना। وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ और अगर एक शख्स तंगी वाला है तो उसकी फराखी तक मोहलत दो। यानी कि अगर कोई शख्स गरीब है, तंगी में है, तो उसको तुम थोड़ी मोहलत दे दो तुम्हारे कर्ज वापस करने के लिए। और अगर तुम माफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अगर तुम माफ कर दो तो बहुत बेहतर है, कर्ज को भी माफ किया जा सकता है। अगर तुम समझो, अगर तुम समझते हो तो कर्ज को माफ कर देना भी ज्यादा बेहतर है। तुमने किसी को माल दिया है, उसको वापस ही ना लो, उसे गरीब शख्स पर सदका माफ कर दो। यानी कि सदका, एज अ सदका आप उसको वो माल उसी पर छोड़ सकते हो, तो ये तुम्हारे हक में अच्छा होगा। और अगर हो तुम इल्म रखते, यानी कि जो शख्स अपना कर्ज अदा करने में मुफलिस, यानी कि गरीब शख्स को मोहलत दे या अपना कर्ज माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उसे अपने साए तले जगह देगा। तो ये हमें पता चला कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को कर्जा देता है और वो उसे माफ कर देता है तो अल्लाह ताला जो है उसको कयामत की सख्तियों से बचा लेंगे। तो इसमें उसके फायदे बताए जा रहे हैं, तो उसको कयामत की सख्तियों से बचा लिया जाएगा और अल्लाह ताला उसको अपने साए के नीचे जगह देंगे। मैं मोहलत दे रहा हूँ, तो मोहलत का हर दिन सदका होगा। यानी कि अगर तुम उस शख्स को मोहलत दे दो जिसको तुमने कर्जा दिया है, कर्जे को वसूल करने के लिए, तो जितनी मोहलत तुम उसे दे रहे हो उसकी मुफलिसी की वजह से, जितने तुम उसको मोहलत दोगे उतने दिन, हर दिन सदका होगा। यानी कि हर दिन वही माल उसके नामाए बतौर में सदका लिखा जाएगा। यानी कि जितना माल उसने उसे दिया है ना, इतना माल रोजाना उसके सदके की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ, कि इसने रोज इतना सदका किया है। जितने दिन मोहलत देगा ना उतने दिन पूरा माल उसका लिखा जाएगा। तो कितना बड़ा यहाँ पर अजर सवाब बताया जा रहा है। मान लो अगर किसी ने किसी को 10 रुपए दिए हैं, तो अगर वो उसको 10 दिन की मोहलत देता है, तो 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेज में तो वो 100 बन जाएगा। तो वो 10 से 100 हो जाएंगे और जो उसके रुपए हैं वो भी उसको वापस मिल जाएंगे 10 दिन बाद जब वो उसको कर्ज वापस देगा। और अगर वो और मोहलत मांगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। और अगर वो माफ कर दे तो माफ करने का क्या अजर बताया गया है। माफ करने का जो अजर है, कयामत की सख्तियों से उसे बचा लिया जाएगा और अल्लाह ताला के साए में उसको जगह दी जाएगी। और इतनी रकम के सदके का सवाब मिलेगा जो मकरूज के जिम्मा वाजिब है। और ये
मियाद पूरी होने से पहले का है, मियाद के बाद यही अजर दुगना होगा, दुगना हो जाएगा। जब वो लौटा देगा उसके बाद जिसका अजर जो है वो दुगना हो जाएगा। يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ काफी बड़ी आयत है माशाल्लाह। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है? या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा तदायंतुम, जब एक दूसरे को कर्ज दो तुम, बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन तक्तुबू, यानी कि कर्ज का तयशुदा वक्त तक, तयशुदा वक्त तक तो लिख लिया करो तुम उसको। यानी कि जब तुम किसी को कर्ज दो तो उसका जो वक्त है, तयशुदा वक्त है, उसको तुम लिख लिया करो। इस आयत को आयत देन भी कहा जाता है। वल्यक्तुब बैनकुम, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, कोई लिखने वाला उसको लिख ले इंसाफ के साथ। वला या अबा कातिबुन, और ना इनकार करे लिखने वाला, आई युक्तुबा, कि वो लिखे, कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, जैसा कि सिखाया उसको अल्लाह ताला ने, बस चाहिए कि वो लिखे। जैसे अल्लाह ताला ने उसको सिखाया है तो वो उसको लिख ले।
वलयम्लिल्लज़ी, और चाहिए कि इमला कराए वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, जिस पर हक है मकरूज, वलयत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि डरे अल्लाह से, जो रब है उसका, और ना कमी करे उसमें से किसी चीज की, और उसमें किसी चीज की कमी ना करे। इन कान लजी अलैहि, फिर अगर वो शख्स हो ऊपर उसके, यानी कि अलैहिल हक, हक पर, फिर अगर वो शख्स हक पर है, सफीहन औ दईफन, बेवकूफ या कमजोर, वो बेवकूफ हो या कमजोर हो, औ ला यस्ततीउ, या नहीं वो इस्तात रखता, आई युमिल्ला हुआ फल युमलिल, कि वो इमला कराए, वो बस चाहिए कि वो इमला कराए, यानी कि लिखवाए, वली युह बिल अदल, सरपरस्त उसका इंसाफ के साथ, जो कोई भी उसको लिखवाए इंसाफ के साथ लिखवाए। और गवाह बना लो दो गवाह, मर्दों में से, अपने मर्दों में से, अपने मर्दों में से दो मर्दों को गवाह बना लो। तो यहाँ गवाहों की बात की जा रही है। बस तशहिदू शहीदैनी मिन रिजालिकुम, मर्दों को गवाह बनाने की बात की जा रही है। तो गवाह बना लो दो गवाह अपने मर्दों में से, फिर अगर ना वो दो हों, दो मर्द, और फिर अगर तुम्हें दो मर्द ना मिले गवाह बनाने के लिए, तो एक मर्द और दो औरतें, तो एक मर्द, और वो जो दूसरा मर्द नहीं मिला तो उसकी जगह दो औरतों को गवाह बना लो, यानी कि एक मर्द और दो औरतें, उनमें से जो तुम पसंद करते हो, चाहे तो दो मर्दों को बना लो, चाहो तो एक मर्द और दो औरतों को बना लो, जो तुम्हें सही लगे गवाहों में से, ताकि अगर ये के भूल जाए उन दोनों में से एक, अगर उन दोनों औरतों में से अगर एक भूल जाए, तो याद दहानी करा दे उन दोनों में से एक, अगर उन दोनों औरतों में से कोई एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे दूसरी को। और ना इनकार करे गवाह जब वो बुलाए जाएं, जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार न करें, और ना वो सुस्ती करें, सुस्ती भी ना दिखाएं कि तुम लिखो उसको, लिखने में सुस्ती ना दिखाओ, उसको लिख लो, छोटा हो या बड़ा हो उसको लिखो, छोटा कर्ज हो बड़ा कर्ज हो, चाहे 1 रुपए का हो, उसको लिख लो अगर कर्ज है, उसकी मियाद तक, जब तक कि तुम उसको कर्ज दे रहे हो। ये बात ज्यादा इंसाफ वाली है अल्लाह के नजदीक, और ज्यादा दुरुस्त है गवाही के लिए। गवाही के लिए लिखी हुई चीज ज्यादा मैटर करती है, और ज्यादा करीब है कि ना तुम शक में मुब्तला हो, मगर के कोई तिजारत हो, हाजिर, यानी कि कीमत और मौजूद हो, कोई तिजारत, तुम लेन देन करते हो उसका आपस में, तो नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि ना तुम लिखो उसको। अगर तुम कोई तिजारत कर रहे हो, कोई लेन देन कर रहे हो, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है लिखने की, चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। और गवाह बना लो जब बाहम खरीदो तुम, और ना नुकसान दिया जाए लिखने वाले को, लिखने वाले को कोई नुकसान ना दिया जाए, लिखने वाले को और ना गवाह को, गवाह को और लिखने वाले को कोई नुकसान ना दिए जाए। और अगर तुम करोगे, उनको नुकसान दोगे, यानी कि, तो बेशक वो गुनाह है तुम पर, साथ तुम्हारे। और डरो अल्लाह से, और सिखा देगा तुमको अल्लाह, और अल्लाह साथ हर चीज के जानने वाला है। तो इस आयत में आपको क्या बताया जा रहा है? वैसे तो वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेनेशन हो गई है, इसी से आपको काफी बात समझ में आ गई होगी। सूरत अल बकरा इस लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि इसमें कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत और सबसे तवील आयत मौजूद है। माली मामलात में लिखत पढ़त का हुक्म सिर्फ गैरों के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों में भी लिख लिया करो। खानदानों में फितना फसाद की बुनियादी वजह माली मामलात में धोखाधड़ी है, तो इससे रिश्ते भी खराब होते हैं अगर रिश्तेदार हैं, तो इसी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। तो इसलिए रिश्तेदार हो, वो चाहे जानने वाले हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसको लिख लिया करो।
इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन मामलात को लिख लिया जाए। लिखने की शर्त क्या है? लिखने की शर्त यह है कि अदल के साथ लिखना, इंसाफ के साथ लिखे। लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, उसका शुक्र करे। लिखने वाला जो है लिखने से इनकार न करे, और जो लिखवा रहे हैं उससे वो उसका शुक्र अदा करें। और लिखने वाले को भी चाहिए कि वो इंसाफ के साथ लिखे, जैसा मामला है वैसा ही लिखे, उसमें कोई ऊपर नीचे ना करे। दो औरतों की गवाही की वजह यह है कि उनकी आसानी के लिए ये हुक्म दिया गया। माली मामलात को ना लिखने का नुकसान। माली मामलात को ना लिखने का नुकसान क्या है? झगड़े, फसाद, खून, खूनरेजियां खूनरेजियां होती हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होता है, खूनरेजियां होने लगती हैं, और कता ताल्लुकी होगी, और जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। दुनिया में भी नुकसान होगा। इसके लिए अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। और नाफरमानी किस काम में? कि उसको लिखा जो नहीं है तुमने। और रिश्तेदारों में पहले तो लेन देन के वक्त लिखते नहीं, फिर जब मसाइल शुरू होते हैं तो बदअखलाकी और बदतमीजी शुरू हो जाती है। अल्लाह के हुक्म पर अमल न करना एक दूसरे को जलील करने के बाइस बनता है, एक दूसरे को जलील करने का बाइस बनता है। तो चाहिए कि अल्लाह की आयतों पर अमल करें। जैसे अल्लाह ताला ने मामलात को हैंडल करना बताया है उसी तरह उनको हैंडल करें। तो अब जब भी आप किसी को कर्ज दें तो उसको लिख लिया करें। और अगर वो मोहताज है तो आप उसको थोड़ी मोहलत दे दें, या माफ करना तो ज्यादा बेहतर है। जिसे जमीनों के सौदे, अहम सौदे जो होते हैं, जैसे जमीनों के सौदे होते हैं, मकानों के सौदे, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पर गवाह बना लिया करो। और वैसे भी वहां तो जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनमें तो एक लॉयर को हायर करते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं गवाह के तौर पर। तो माली मामलात में इन अहकामात की पाबंदी करने का फायदा, अभी तो ये नुकसान आपको बताया गया कि झगड़ा, फसाद, खूनरेजी और कटा ताल्लुकी, जिंदगी जहन्नम बन जाएगी, दुनिया में भी नुकसान होगा, और अल्लाह की नाफरमानी करने की जो नुकसान है वो बता दिए गए। अब माली मामलात में इन हुकूम की पाबंदी करने के फायदे क्या है? जिंदगी खुशगवार बन जाती है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और डरो अल्लाह से। माली मामलात के साथ अल्लाह ताला ने तकवा का जिक्र कर दिया। और क्यों किया तकवा का जिक्र? तकवा का जिक्र इसलिए किया, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और डरो अल्लाह से, और सिखा देगा तुमको अल्लाह। अल्लाह से डरो और वो तुमको सिखा देगा। क्या सिखा देगा? माली मामलात के साथ अल्लाह ताला ने तकवा का जिक्र किया है, क्योंकि जो तकवा अख्तियार करता है, अभी पीछे भी अल्लाह से डर की बात हुई थी कि इंसान गलत काम नहीं करता, सूद नहीं लेगा अगर अल्लाह से डरेगा तो जो तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको ये सारे काम सिखा भी देते हैं, और उसके ये सारे काम आसान हो जाते हैं, और तकवा से फुरकान मिलता है। तो इनकी बातें भी ज्यादा समझ में आएंगी। और इल्म हासिल करने के लिए तकवा बहुत जरूरी है। हम जो सीखते हैं और सिखाते हैं, और हमें अपने इल्म को बेहतर बनाने के लिए जिसकी जरूरत है वो है तकवा। खुदा का खौफ, उससे हया करो, उससे डरो, और गलत कामों को छोड़ दो। और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, उसे सब पता है। पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, उससे नहीं छुपा सकते। सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते। नेक्स्ट आयत करते हैं फिर। وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يكتم الشهادة، ومن يكتمها ومن يكتمها فإنه أثيم قلبه والله بما تعملون عليم.
यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर तुम सफर में हो और कोई दिखने वाला ना पाओ, तो रहन रखने की चीजें कब्जे में दे दी जाए। यानी कि जो चीज अगर तुम्हारे पास है, उसको तुम गिरवी के तौर पर दे दो, कब्जे के तौर पर दे दो। और अगर तुम में से एक शख्स दूसरे शख्स का एतबार करता है, तो चाहिए कि जिस शख्स पर एतबार किया गया वो एतबार को पूरा करे। लेकिन अगर वो बदले में तुमसे कोई चीज ना ले, तुम पर एतबार करके तुम्हें कर्ज दे रहा है, तो कर्ज लेने वाले को चाहिए कि वो उसके एतबार को कायम रखे, उसे धोखा ना दे, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है। और गवाही को ना छुपाओ, और जो शख्स छुपाएगा उसका दिल गुनहगार होगा। तो गवाही को छुपाना नहीं चाहिए, अगर जो कोई गवाही छुपाएगा तो उसका दिल गुनहगार होगा। और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसको जानने वाला है। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। तो यहाँ पर दिल का भी गुनाह होते हैं, और दिल के भी अमल यानी कि एक्शन होते हैं, जाहिरी बातिनी अकवाल अफआल, सब में, सब में दिल का एक्शन होता है। और गुनाहों से बचो और तकवा अख्तियार करो। वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नह इस्मुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि जो तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसका हिसाब लेगा, तो सहाबा पर बहुत खौफ तारी हो गया कि उस पर तो अमल नहीं हो सकता, दिल के ख्यालात पर तो काबू नहीं किया जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो समीअना व अताअना, सल्लमना, हमने सुना और इताअत की, और हमने तस्लीम कर लिया यानी कि मान लिया। तो इससे पता चलता है कि दिलों में जो इंसान सोचता है, दिल में जो ख्याल होते हैं, अल्लाह ताला उनको भी जानता है, और उस पर भी इंसान की पकड़ होगी। लेकिन इस पे तो इंसान का काबू नहीं है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो काबू रखे इस पर। अल्लाह ताला ने दिलों के ईमान दिलों में ईमान भर दिया। जब उन्होंने ये बात कही कि सुना हमने और इताअत की हमने और हमने तस्लीम कर लिया, तो इस पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ईमान भर दिया। और उसके बाद ये आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत नाजिल हुई? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने ऐसा कर दिया। फिर जब उन्होंने कहा रब्बना ला तुज़िग़ना इन नसीना व अख़्ताना, तो अल्लाह ने उनकी बात मान ली। फिर जब उन्होंने कहा रब्बना वला तुहम्मिलना अलैना, अब ये आगे आयतें आती जा रही है ना आपकी, ये सूरत अल बकरा कंप्लीट होने वाली है। यहाँ जब बताया जा रहा था कि जब ये आयत नाजिल हुई, इस आयत के नाजिल इसके बाद ये आयत नाजिल हुई, जब उन्होंने तस्लीम कर लिया तो उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला किसी शख्स को मगर उसकी वसअत के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने ऐसा कर दिया। कैसा कर दिया? फिर जब उन्होंने कहा रब्बना ला तुसिगना इन नसीना औ अख्ताना, यानी कि ए हमारे रब ना मुआखजा करना हमारा अगर हम भूल गए या खता की हमने, तो हमारा मुआवजा ना करना यानी हमें पकड़ना ना अगर हम भूल जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी बात मान ली। और फिर उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने उनकी बात मान ली, तो फिर से उन्होंने कहा, क्या कहा? रब्बना वला तुहम्मिलना अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। तो इसका क्या मतलब है कि ए हमारे रब, न डाल हम पर बोझ जैसा कि डाला तूने उसको उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब, और ना तू उठाना हमको जो नहीं कोई ताकत हमारे लिए साथ उसके। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया जैसा उन्होंने कहा, अल्लाह ताला कर रहे हैं। फिर से अल्लाह ताला ने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने कहा, अब आगे क्या कहते हैं वो,
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो अल्लाह ताला ने फिर से उनकी बात मान ली। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? और दरगुजर फरमा हमसे, और बख्श दे हमको, और रहम फरमा हम पर, हमारा मौला है तू, बस मदद फरमा हमारी काफिर कौम के मुकाबले पर। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने उनकी बात मान ली। तो मसलन ये कि हुक्म सुना तो सोच लिया कि अमल भी करना है। अल्लाह का कोई हुक्म सुन लिया, सूद के बारे में या कर्ज के लेन देन का हो, और लेन देन को लिखने का हो, या तो सूद के बारे का हो या कर्ज को लेन देन के लिखने में हो, तो फौरन दिल से मान लिया और इताअत शुरू कर दी। ये ना सोचा कि आज तो मुमकिन नहीं, तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, ये नहीं सोचा। जब सुना फौरन इताअत कर ली। और तो अल्लाह ईमान बढ़ाएगा और अमल की तौफीक देगा इंशाल्लाह। तो इरादा कर लेना है बस। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद भी फरमाएंगे। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है। तुम अपने दिल की बातों को जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। जो बातें बातें तुम्हारे दिल में है या तुम उसको जाहिर कर रहे हो, उसको सब पता है, वो तुमसे हर चीज का हिसाब ले लेगा। फिर जिसको चाहेगा बख्शेगा, और जिसको चाहेगा सजा देगा। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जिसको चाहे चाहे सजा दे, जिसको चाहे बचा ले। अल्लाह ताला की कुदरत है आने की। हर चीज अल्लाह के हाथ में है, और हर चीज का मालिक अल्लाह है। वो न सिर्फ जाहिरी बातों को जानता है, बल्कि दिल की बातों को भी जानता है। इसलिए अगर तुम अपने दिल की बातों को जाहिर करोगे या फिर उन्हें तुम छुपा लोगे, अगर वो दुरुस्त ना हुई, तो उन पर वो हिसाब भी ले सकता है। यानी कि जो बातें तुम दुरुस्त नहीं थी और वो तुमने अपने दिल में ही छुपा ली, तो उस पर भी अल्लाह ताला आपका हिसाब दे सकता है। अगर किसी के दिल में गुनाह का ख्याल भी आए, तो उसका भी हिसाब होगा। दिल के ख्याल पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो तो आते ही चले जाते हैं, फिर तो हम बच नहीं पाएंगे। नहीं है, अगर किसी के बस में नहीं है किसी वसवसे को कंट्रोल करना, किसी ख्याल को रोकना, तो उस पर पकड़ नहीं होगी, अगर बस में नहीं है। लेकिन दूसरे ख्यालात वो ख्यालात हैं। अब ख्यालात भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, खुद ही आते हैं। तो ऐसे ख्यालों पर तो अल्लाह ताला छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन दूसरे ख्याल कौन से हैं? दूसरे ख्याल वो ख्यालात हैं जो इंसान के इरादे और इख्तियार पर मबनी होते हैं। चाहे तो उनको दिल में रखे और चाहे तो निकाल दे। गैर इख्तियारी, गैर इरादी और कुदरती तौर पर आने वाले ख्यालात, और जिनमें वसवसे भी हैं। कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया कि ये जो ख्यालात आते हैं दिल में, वसवसे जो आते हैं, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जो दिल में बुरे ख्याल आ जाते हैं, तो इसका क्या है, और ये क्या चीज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि यही तो ईमान है। वसवसा उसी दिल में आएंगे जहाँ कोई ईमान होगा, जहाँ कोई खैर होगी। तो ईमान भी एक बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए जहाँ ईमान होगा, नेकी का शौक होगा, कोई खैर की भलाई की चीज होगी, शैतान वही आएगा और आके दिल में बुरे ख्याल डालेगा, यानी कि अच्छे काम से रोकने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात को जो तीन चीजें मिली थी, उनमें से ये सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत भी थी। सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर मिली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, तो मेराज के मौके पर इस सूरत की आखिरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास खजाने से अता की गई, जो अर्शे इलाही के नीचे है। और ये आयत आपके सिवा किसी और नबी को नहीं दी गई। इन आयत के आखिर में
हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हो आमीन कहा करते थे। यानी कि जब इन आयत को पढ़ते होंगे तो इनके आखिर में हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो आमीन कहा करते थे। और जाहिर है कि ये अमल उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा होगा, तभी वो इसे करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत के बारे में ये भी फरमाया है कि जो शख्स सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत रात को पढ़ लेता है, उसको ये उसकी हिफाजत के लिए काफी हो जाती है। उसके ये पढ़ने की बदौलत अल्लाह ताला उसको उसकी जो है हिफाजत फरमाते हैं। नेक्स्ट आयत। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। यहाँ जो मैंने इनको पढ़ा है, इसको पढ़ने का तरीका जो है वक्फा की रूलिंग है यहाँ पर। तो वक्फा पर हम कैसे करते हैं, एक सीन वाली रूलिंग होती है जिसको सख्ता कहते हैं। तो सख्ता पर हम रुकते हैं लेकिन सांस नहीं छोड़ते। लेकिन वक्फा जो है यहाँ पर भी रुकेंगे, लेकिन जितना सख्ता पर रुकते हैं यहाँ से ज्यादा रुकेंगे। यानी कि अगर सख्ता पर 1 सेकंड रुक रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 सेकंड रुकेंगे। तो इसी तरह मैंने इसको पढ़ा, वाफु अन्ना वागफिर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। तो इसी तरह आपको इसे पढ़ना है। बहुत से लोग कैसे पढ़ते हैं कि तजवीद की रूलिंग को अप्लाई नहीं करते और पढ़ते हैं वाफु अन्ना वागफिर लना वरहमना, रुकते नहीं है, एक ही सांस में पढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ रुकना है लेकिन सांस नहीं छोड़ना, पढ़ना तो एक ही सांस में है लेकिन रुकना है बीच बीच में। इन तीनों लफ्जों के बीच बीच में रुकना है क्योंकि यहाँ पर वक्फा की रूलिंग दी गई है। इंशाल्लाह रमजान के बाद मैं कुरान की रेसिटेशन की क्लास रखूंगी जिसमें मैं आप लोगों को तजवीज के साथ कुरान करीम को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अब हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इन दोनों आयतों की। हम इंशाल्लाह हमारी सूरत अल बकरा आज कंप्लीट हो जाएगी। तो इन आयतों में क्या बताया जा रहा है, रसूल ईमान लाया है उस पर जो उसके रब की तरफ से उस पर उतारी है, और मुसलमान भी उस पर ईमान लाए हैं। सब ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। और वो कहते हैं कि हमने सुना और माना, माना हम तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब, और तेरी तरफ लौटना है। नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि अल्लाह किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। उसको मिलेगा वही जो उसने कमाया, और उस पर पड़ेगा वही जो उसने कहा। ए हमारे रब, हमको ना पकड़ अगर हम भूले या हम गलती कर जाएं। ए हमारे रब, हम पर बोझ ना डाल जैसा बोझ तूने डाला था हमसे अगलों पर, यानी कि पहले वाले लोगों पर। ए हमारे रब, हमसे वो ना
उठवा जिसकी ताकत हमको नहीं, और दरगुजर कर हमसे और हमको बख्श दे, और हम पर रहम कर, तू हमारा कारसाज है। बस इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी मदद कर। सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत 285 और 286, 285 और 286 अर्श के नीचे से दी गई हैं। यानी कि ये अर्श के नीचे थी, एक खजाने में थी, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ा करो, क्योंकि ये मुझे अर्श के नीचे से एक खास खजाने से दी गई है। एक तो खजाना होता है और यहाँ खास खजाने का जिक्र है। अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर रात सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ी, उसको वो काफी हो जाएंगी, उस शर से काफी हो जाएगी, हिफाजत के लिए, यानी कि हर तरह की शर से काफी हो जाएगी, यानी कि हर तरह की मुसीबत से बचाएगी। कोई चीज उसको नुकसान नहीं दे सकेगी। एक मायना ये है, ये मुराद नहीं कि तहज्जुद छोड़ दें, मुराद ये है कि लेकिन अगर कभी नहीं पढ़ सके तो तहज्जुद तो ये आयत तो पढ़ लें। यानी कि तहज्जुद की नमाज से भी काफी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक माना तो ये है, ये इसका ये मतलब ये मुराद नहीं है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ो ही ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, लेकिन अगर कभी नहीं पढ़ सके तहज्जुद तो ये आयत पढ़ लें, ये बताया जा रहा है। और शैतान से हिफाजत करने वाली आयत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 2000 साल कब्ल एक किताब लिख दी, और उसमें दो आयतें नाजिल करके उससे सूरत अल बकरा का इख्तिताम फरमा दिया। यानी कि आसमान और जमीन को बनाने से 2000 साल पहले एक किताब लिख दी थी अल्लाह ताला ने, और उसमें ये दो आयतें नाजिल करके उस सूरत का इख्तिताम फरमा दिया। जिस घर में 3 रातों तक ये दो आयतें पढ़ी जाएंगी, शैतान उस घर के करीब नहीं आ सकेगा। तो जिस घर में शैतान है, तो उस घर में 3 दिन तक ये आखिरी दो आयतें अगर पढ़ी जाएंगी तो इंशाल्लाह शैतान उस घर के करीब नहीं आ सकेगा। और शैतान करीब नहीं आएगा तो शैतान तो बहुत खराब होता है हमारे दीन में, दीन के मामलात में भी बिगाड़ पैदा करता है, हमारे फैमिली में के दरमियान में बिगाड़ पैदा करता है, लड़ाई झगड़े फसाद बर्पा करता है, और नमाज से रोकता है, अच्छे काम करने से रोकता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। बहुत अच्छी आयतें हैं, आपको इनको जरूर रात को पढ़कर तब सोना चाहिए। आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला ने 104 किताबें उतारी। अल्लाह ताला ने 104 किताबें उतारी, कुरान मजीद, तौरात, इंजील, ज़बूर, 10 सहीफे मूसा अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम, और बाकी पैगंबरों पर जो किताबें नाजिल की हैं उनमें सब पर ईमान रखते हैं। हम उन सब पर ईमान रखते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने, इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें उतारी हैं, कुरान मजीद समेत, तौरात, इंजील, ज़बूर और जो सहीफे हैं उन सब को मिला करके 104 बनती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें और बाकी पैगंबरों पर और जो किताबें नाजिल की हैं अल्लाह ताला ने उन पर हमें सब पर ईमान रखना है कि अल्लाह ताला ने इन सब को इंसानों की हिदायत के लिए उतारा है। ये अल्लाह का एहसान और इनाम है हम लोगों पर। कुरान मजीद जो सबसे आखिरी किताब है, इसमें पिछली सारी किताबों की तालीमात को महफूज कर दिया गया, जो रहती दुनिया तक इंसान की हिदायत के लिए काफी है। यानी कि पिछली जितनी भी किताबें हैं, यानी कि 103 104 बताई जा रही है ना तादाद, तो एक तो कुरान मजीद हो गया, तो बची 103। पिछली जो 103 किताबें हैं उन सब की जो तालीमात है ना, वो सारी तालीमात कुरान में एक जगह करके दे दी गई। तो ये 104वीं किताब है, और ये तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए काफी है और रहती दुनिया तक काफी है।
اور اس آیت کی اس لیے اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں، اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے۔ اور اس میں اللہ کی تقدیر کا ذکر نہیں ہے۔ سمیعنا و اطعنا میں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لینا شامل ہے۔ یہ جو ہے سمیعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اس میں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کر لینا شامل ہے۔ اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کسی مشکل پر کوئی شکوہ نہ کرنا، یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کی اصل چاشنی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر مان جائے۔ بخشش مطلب بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی ہے۔ بخشش مانگنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی ہے، پہلے اطاعت کرو تبھی تو بخشش ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی کہ جیسے میں وضو کرتا ہوں وہ وضو کر کے دکھا رہے ہوں گے وہاں پر، کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے یعنی کہ دل لگا کر نماز پڑھے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب چاہیں کہ اپنے گناہ معاف ہو تو کچھ کام کرنا چاہیے۔ جب انسان چاہتا ہے کہ اس کے کچھ گناہ معاف ہو جائیں تو اس کو کچھ کام کرنے چاہیے، اور وہ کام کیا ہے؟ کبھی نماز پڑھ کر، کبھی صدقہ کر کے، کبھی روزہ رکھ کر، اور کبھی ان کی مجلس میں شامل ہو کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے نماز، صدقہ، روزہ، اور یہاں تک کہ دین کی مجلس میں جانا بھی، کیونکہ جب انسان دین کی مجلس میں جائے گا تو غلط کاموں سے بچا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے اتنے اچھے عمل لے کر آئے کہ وہ غلط کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ اور ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت محدود ہے، بندہ کمزور ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری میری وسعت سے زیادہ تو مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے معاف فرمانا۔ ان آیات کو پڑھ کر جو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں، یا قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں، نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو دعا کے بغیر تو نماز بھی ادھوری ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور دعا مانگتے ہوئے ان آیتوں کو پڑھ لیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دعائیں تھے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور درود شریف، درود شریف بھی پڑھ لینی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو ان کو اپنی نمازوں میں اپنے شامل کریے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے بعد جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی مجلس میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ جیسے نماز میں ہمارا تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ویسے قرآن پڑھتے ہوئے بھی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعلق بن جاتا ہے، ہم ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ آل عمران پڑھیں گے، جس میں بہت سارے حقوق کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم کورس کو کر رہے ہیں، ٹائم ہم تھوڑا کم کر پا رہے ہیں ہم پارے کو، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اچھے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی جو کلاس ہے وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہے، انشاءاللہ آپ اس کو اپنے عمل میں انشاءاللہ شامل کریں۔ السلام علیکم میم، ایک کوشچن تھا میرا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جی بولیے۔ صدقے کے بارے میں جو آپ بول رہے تھے، تو ہمارے گھر کے پاس مطلب اچھے ہیں، لیکن وہ صدقے کے لینے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن انہوں کبھی کبھی بولتے ہیں ہمارے سامنے کہ صدقہ زکوٰۃ بھی خوشی کے طور پر، تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، جو لے سکتے ہیں ان کو۔
मिस्किनों को ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मौलाना की वाइफ है, लेकिन उन्होंने ऐसा ख्वाहिश करते हैं कि दे सकते हैं बोल के बोलते हैं। क्या उनको दे सके तो गुनाह तो नहीं होता ना हमें? मतलब कि क्या कहना चाह रही हैं आप, एक मिनट में समझी नहीं थोड़ा, कि वो लोग मतलब जरूरतमंद हैं या नहीं है? बहुत जरूरतमंद है, उन्होंने हद से ज्यादा, लेकिन उनके पास कभी कभी खाने पीने के लिए भी मतलब पैसे नहीं रहते उनके पास, बहुत ज्यादा गरीब है। हाँ तो तो दे लेकिन उन्होंने सकते खुल हैं। के नहीं मांगते, खुल के हाँ दे मांगते नहीं, सकते उन्होंने हैं, कहा अच्छा। दे सकते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों को दे सकते हैं सदका। और जरूरी नहीं है कि आप उनको बता कर दे कि आप उनको सदका दे रही हैं, क्योंकि अल्लाह हाँ ताला हाँ। हमारी नियतों को जानते हैं। तो अपने दिल में आप ऐसा करके कि आप उनको सदका दे रहे हो, तो आप उनको एज अ हदिया दे सकते हो। ठीक है, ताकि उनको बुरा भी ना लगे। अगर वो सदका लेना नहीं चाहते हैं तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा, और उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। हाँ, ठीक है मैम, जजाकल्ला। वही है कि ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, फिर इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।